بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دعائے زکریا علیہ السلام جو کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89 میں مذکور ہے۔ رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ بے شک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء طالبات، میں رضوانہ سعید آپ کے سامنے آج کا درس لے کر حاضر ہوں، اور میں شعبہ اردو ڈویژن پبلک اسکول اینڈ انٹرمیڈیٹ کالج لاہور سے وابستہ ہوں۔ امید ہے کہ اب تک کروائے گئے کام سے آپ نے پوری طرح فائدہ اٹھایا ہوگا، اور آپ اپنے نصابی معاملات میں یقیناً کچھ بہتری محسوس کرتے ہوں گے۔ کہیں بھی کوئی مشکل پیش آئے آپ بلا تکلف اپنے اساتذہ سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے سوالات، آپ کے خیالات کا ہمیشہ خیر مقدم کریں گے۔ آج کا درس جمع ششم کے لیے درس ہشتم ہے، اور اس میں ہم سبق مادر ملت فاطمہ جناح کی پڑھائی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سبق میں شامل مشکل الفاظ کے معنی بھی جانیں گے۔ پیارے بچوں، اس کی صورت کچھ یوں ہوگی کہ میں آپ کے لیے اس سبق کو پڑھتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی۔ آپ لوگ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 9 کھول لیجئے اور میرے ساتھ ساتھ اس عبارت کو دہرائیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے تلفظ کی اصلاح ہو سکے گی، اور آپ عبارت خانے کے اصولوں سے زیادہ بہتر طور پر واقف ہو سکیں گے۔ آپ جلدی سے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 9 کھول لیجیے۔ جی پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں مادر ملت فاطمہ جناح، جو کہ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 9 پر لکھا ہوا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے قریباً 17 سال چھوٹی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح بھی چھوٹی ہی تھی، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھنے سے مراد ہے ماں یا باپ کا فوت ہو جانا۔ ان دنوں قائد اعظم محمد علی جناح بمبئی میں وکالت کر رہے تھے۔ بمبئی لفظ کو آپ لوگ جان لیجئے کہ اب اس کا تلفظ ممبئی کہا جاتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے فاطمہ جناح کو بمبئی بلا لیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی تعلیم کا آغاز تو کراچی ہی میں ہو چکا تھا۔ بمبئی پہنچ کر وہ کانوینٹ اسکول میں داخل ہو گئی۔ 1910 میں محترمہ فاطمہ جناح نے میٹرک کے امتحان میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ امتیازی نمبروں سے مراد نمایاں حیثیت، اور اس سے پہلے ایک اور مشکل لفظ گزرا ہے کانوینٹ اسکول۔ پیارے بچوں، یہ انگریزی تعلیم کا ادارہ ہوتا ہے۔ میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے سینئر کیمبرج اور پھر 1922 میں ڈینٹل سرجن کا امتحان بھی اعلیٰ نمبروں سے پاس کر لیا۔ ڈینٹل سرجن یعنی دانتوں کی ڈاکٹر۔ ڈینٹل سرجن بننے کے بعد انہوں نے بمبئی میں اپنا کلینک کھول لیا۔ انسانیت کی خدمت اور سماجی کاموں سے مراد ہے عوامی بھلائی کے کام کا جذبہ زمانہ طالب علم میں اسے میں موجود تھا، لہٰذا وہ دانتوں کی جراحی کے میدان میں، دانتوں کی جراحی سے مراد ہے دانتوں کا علاج معالجہ، دانتوں کی جراحی کے میدان میں انسانیت کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ 1929 میں جب قائد اعظم کی اہلیہ یعنی بیوی رتی جناح کا انتقال ہوا تو محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے ڈاکٹری کے پیشے کو خیر بات کہہ دیا۔ خیر بات کہنا، رخصت کرنا، چھوڑنا، ترک کرنا، اور قائد اعظم کے پاس آ گئی۔ محترمہ فاطمہ جناح سیاست کے میدان میں قائد اعظم کی معتمد ساتھی، معتمد قابل اعتبار، اور تحریک پاکستان میں ان کی معاون، مددگار، اعانت کرنے والا، اور مشیر یعنی مشورہ دینے والا رہی۔ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ قائد اعظم جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے گول میز کانفرنس کے دوران قائد اعظم کو نہایت اچھے سیاسی مشورے دیے۔ محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ یا نہایت دور اندیش، عقل مند، دور کی بات سوچنے والا اور بہت جرأت مند خاتون تھی۔ انہوں نے
मुस्लिम ख़वातीन को बेदार करना यानी जगाना, किसी में एहसास पैदा करना और उन्हें एक सियासी प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करने में नहायत अहम किरदार अदा किया। मुत्तहिद करना, जमा करना, इकट्ठा करना। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कौमी मफादात के लिए वक्फ कर दी। कौमी मफादात, कौम का फ़ायदा वक्फ करना, मखसूस कर देना। उन्होंने हर कदम पर कायद-ए-आज़म का साथ दिया। अवामी जलसों में भी वो अपने भाई के शाना बशाना शरीक रहे। शाना बशाना, साथ साथ, कंधे से कंधा मिलाकर चलना। वो ख़वातीन के कौमी, सियासी और समाजी किरदार के साथ साथ उनके घरेलू किरदार से भी बराह रास्त वाबस्ता थी। जुड़ा हुआ, मुंसलिक। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन के सियासी और फ़िक्री रहनुमाई के साथ साथ ख़वातीन के आम घरेलू मसाइल में भी उनकी रहनुमाई और हौसला अफजाई की। रहनुमाई, रास्ता दिखाना, हौसला अफजाई, हिम्मत बढ़ाना। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने ख़वातीन को तहरीक पाकिस्तान में रहनुमाई फराहम की। तहरीक, हरकत देना, काम के लिए आमादा करना और फराहम करना यानी मुहैया करना। और उन्हें अमली सियासत के मैदान में लाने के लिए भी बुनियादी किरदार अदा किया। बेगम मोहम्मद अली, बेगम हारून, बेगम सरमद सद्दुक हुसैन, बेगम बशीर अहमद, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह और राना लियाकत अली खान के साथ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ख़वातीन कमेटी की मेंबर थी। मेंबर यानी रुकन। उन्हें ख़वातीन के हल्के में बेपनाह मकबूलियत और इज़्ज़त हासिल रही। मकबूलियत, शोहरत। वो ख़वातीन को अमली सियासत में आने के लिए तैयार करना और उन्हें कौमी मैदान में हर किस्म की कुर्बानी देने की तरगीब देती थी। कायद-ए-आज़म ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान में ख़वातीन के हवाले से तमाम उमूर की निगरानी का फरीज़ा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को सौंप रखा था। निगरानी, देखभाल, फरीज़ा यानी जिम्मेदारी, फ़र्ज़ और सौंपना, हवाले करना। कोयटा के मुकाम पर ख़वातीन से खिताब करते हुए मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने फरमाया, अब तक हम मुस्लिम ख़वातीन ने अपनी कौम की कोई ख़ास मदद नहीं की। हालांकि अगर हम लोग भी चाहते तो बहुत कुछ काम का हिस्सा बटा सकते थे। इस वक्त हमारी ज़रूरतें 4 हैं, यानी इक़्तिसादी, मुआशरती, तालीमी और सियासी। हमको चाहिए कि हम में से हर एक जिससे जितना हो सके अपनी क़ुव्वत यानी ताकत और अपनी हैसियत के मुताबिक अपने ख़ानदान, अपने हमसाए, अपने दोस्तों और अजीज़ों में अमली क़ुव्वत की रूह फूंकना, ज़िंदगी बख्शना, उसमें कौमियत का जज्बा पैदा करे। कौमियत, एक कौम होने का एहसास। इस तरह हम अपनी कौम की कुछ मदद कर सकते हैं। तब पाकिस्तान के बाद भी जो कौमी खिदमत का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने बीमारी के दौरान में कायद-ए-आज़म की बेपनाह खिदमत की। वो हमा वक्त, हर लम्हा उनके साथ रही। सरकारी कामों में भी उनका हाथ बटाती रही। तालीम नुस्वा के लिए, औरतों की तालीम, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की खिदमत से इनकार मुमकिन नहीं। उन्होंने अब्बा एक एब्रीविएशन है यानी मुख़फ़्फ़फ़ APWA, यह ख़वातीन की तरक्की का एक इदारा है और उसकी फुल फॉर्म यानी मुकम्मल नाम है ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन। अब्बा के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमत का एक सिलसिला जारी किया। वो अब्बा की सरपरस्त रही, निगरान, ज़िम्मेदार और हर सतह पर उन्होंने अपने बेमिसाल और कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवाया। बेमिसाल, जिस जैसा कोई ना हो। कायदाना सलाहियत, रहनुमाई की खूबी और लोहा मनवाना यानी शुजाअत और दिलेरी दिखाना। अब्बा के अलावा वो कई और तंजीमों की भी सरपरस्त थी। उनकी सरपरस्ती बराए नाम नहीं थी, बल्कि हर तंजीम के दायराकार में रहते हुए, दायराकार यानी काम का मैदान, उन्होंने एक कारकुन की हैसियत से अपने मनसबी फ़राइज़ को पूरा करने के लिए काम किया। मनसबी फ़राइज़, जिम्मेदारियाँ। तब पाकिस्तान के फ़ौरन बाद पैदा होने वाले मसाइल के हल में वो अमलन शरीक-ए-कार रहे। शरीक-ए-कार, साथ काम करने वाले। ख़ास तौर पर महाजिरीन की आबादकारी और कश्मीरी महाजिरीन की दस्तगीरी में उनकी खिदमत आबेज़र से लिखने के लायक हैं। महाजिरीन वो लोग जो हिजरत करके आए हों, यानी हिजरत करने वाले। दस्तगीरी यानी मदद और आबेज़र
यानी सोने का पानी। कायद आज़म की वफ़ात के बाद वो अमली सियासत से किनारा कश हुई, और किनारा कश होना, अलग हो जाना, किनारा करना, दूर हो जाना, छोड़ देना, मगर सियासी हवाले से उनकी खिदमत का सिलसिला जारी रहा। मोहतरमा फातिमा जिना अजीम खातून रहनुमा थी, रहनुमा, राहबर, लीडर। कौम में मिली खिदमत के हवाले से कौम ने उन्हें मादर मिल्लत यानी कौम की माँ का लक़ब दिया। वो सच्ची और पुरखलूस मुसलमान थी। आला अंग्रेज़ी तालीम तरबियत के बावजूद वो इस्लामी तालीमात की सच्ची पैरोकार थी। पैरोकार, पैरवी करने वाला। आलम इस्लाम का इत्तेहाद, आलम इस्लाम यानी इस्लामी दुनिया और पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम फ़िक्र की तरवीज उनका ख्वाब था। तरवीज, इशाअत करना, जारी करना। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कोशा रही। शर्मिंदा ताबीर जिसकी कोई ताबीर हो यानी तकमील। कोशा, कोशिश करने वाला। एक मौके पर तकरीर करते हुए उन्होंने फरमाया, अगर हम वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान को सही इस्लामी ममलिकत बनाया जाए, उसके लिए कुछ इस्लामी तालीमात का इजरा बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरत इसी सूरत में पूरी हो सकती है कि हम अपने तमाम तालीमी इदारों में कुरान हकीम की तालीम को बाकायदा दरसी निसाब में, दरसी निसाब से मुराद है स्कूल का कोर्स, शामिल कर लें, ताकि बच्चे इस किताब इल्म हिकमत के मानी और मतालिब, मतालिब मतलब की जमा यानी मानी से आगे हासिल कर सकें और पुरानी तालीमात पर अमल पैरा हो सकें। मेरी दिली तमन्ना है, दिली तमन्ना, दिली ख्वाहिश कि तमाम स्कूलों में कुरान हकीम की तदरीस का फ़ौरन बंदोबस्त हो जाए। तदरीस, पढ़ाना। मोहतरमा फातिमा जिना ने 9 जुलाई 1967 को वफ़ात पाई। उन्हें कायद आज़म मोहम्मद अली जिना के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया। अहाता, हदबंदी, घेरे में लिया हुआ इलाका, और सुपुर्द खाक से मुराद है दफन करना। प्यारे बच्चों, सबक हमने पढ़ लिया, मुश्किल अल्फाज भी देख लिए। अब हम मश्की काम में से भी पहला सवाल हल करने जा रहे हैं। पहला सवाल चंद मुख्तसर सवालात पर मुश्तमिल है। पहले सवाल में हमसे पूछा जा रहा है, मोहतरमा फातिमा जिना कब और कहाँ पैदा हुई? जवाब है, मोहतरमा फातिमा जिना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। दूसरा सवाल, मोहतरमा फातिमा जिना किस मकसद के तहत कायद आज़म के साथ लंदन गई थी? मोहतरमा फातिमा जिना गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कायद आज़म के साथ लंदन गई थी। अगला सवाल है, मोहतरमा फातिमा जिना ने अपनी सारी ज़िंदगी किस बात के लिए वक्फ कर दी? तो इसका जवाब है, मोहतरमा फातिमा जिना ने अपनी सारी ज़िंदगी कौमी मफादात के लिए वक्फ कर दी। मोहतरमा फातिमा जिना ने किस प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया? मोहतरमा फातिमा जिना ने अफ़वा के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया। जी, अगला सवाल है, मोहतरमा फातिमा जिना की कौन सी खिदमात आब-ए-ज़र से लिखने के लायक हैं? महाजरीन की आबादकारी और कश्मीरी महाजरीन की दस्तगीरी में मोहतरमा फातिमा जिना की खिदमात आब-ए-ज़र से लिखने के लायक हैं। और आखिरी सवाल है, आपको कहाँ दफन किया गया? आपको कायद आज़म के मज़ार के अहाते में दफन किया गया। आज के दर्स में हमने सबक मादर मिल्लत फातिमा जिना की पढ़ाई की है, साथ साथ सबक में शामिल मुश्किल अल्फाज के मानी भी देखे। मश्की काम में से पहला सवाल भी हम हल कर चुके हैं। दरस आइंदा में हम मश्की काम की तकमील करेंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त तक आप आज तक पढ़ाया गया और करवाया गया तमाम काम अच्छी तरह से समझ लें और इसको याद भी करें। आपके साथ अगले दर्स में मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।